Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your science teacher, Miss Saida. How are you students? Hope you all will be fine. Today I explain you assignment number 4, which is taken from the chapter Respiration and Energy from the Food. Okay student, we have learned about the respiration in the previous lecture. It is an energy giving process during which oxygen is added in the food and produce carbon dioxide, water and energy. Otherwise, we can say that there is burning of food occurs. Okay student, there is the figure of the composition of air inhaled by a person and the composition of the air exhaled by a person. अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि you have to know the composition of air. Air is the mixture of gases and it contains 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.03% carbon dioxide, 1% inert gases and variable water vapors. Okay, this is the composition of air, and when we inhale air, this air goes into our body. Okay, now look at here. This is the composition of air exhaled by a person. Here is nitrogen is 78%, oxygen is 16% and carbon dioxide is 4%. Inert gas is 1 and water vapors are also variable. ठीक है, तो अब आप इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो है ऑक्सीजन जो कि इनहेल्ड एयर में 21% थी, वो 5% जो है एक्सहेल एयर में कम हो गई है. तो इट मीन्स 5% ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी ने यूज़ कर ली. ठीक है, इसी तरीके से आप देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इनहेल्ड एयर में 0.03% थी, जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 4% होता है. यानी इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, और इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, अच्छा, अब आप यहाँ देखिएगा कि सिर्फ जो इसमें चेंज आया है वो सिर्फ जो है किस में आया है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट में जो है वो डिफरेंस आया है. देयर इज अ गैस नाइट्रोजन विच इज अनचेंज, जिसका बहुत बड़ा अमाउंट है नाइट्रोजन का 78%. जब ये हमारी बॉडी में जाती है तो वो जो है जितनी हमारी बॉडी में इनहेल्ड होती है उतनी ही एक्सहेल्ड होती है. यानी हमारी बॉडी में कोई नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती. और इनर्ट गैसेस भी जो है 1% है और वाटर वेपर भी जो है वो वेरिएबल है. सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट में जो है वो चेंज आती है, बिकॉज अवर बॉडी यूजेस ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. राइट? Okay student, now come on to the breathing movement. You know there are 2 steps of breathing. We breathe in or inhale air and we breathe out or exhale air. When we do breathing, our chest changes shape and these movements are brought about by the 2 organs. Number 1, diaphragm and intercostal muscles. What is diaphragm? Diaphragm is the tough dome-shaped sheet of muscles across the bottom of the chest. Okay, and the intercostal muscles are the muscles of the ribs. They both help in the breathing movement. When we breathe in, diaphragm is pulled down and the rib cage is pulled upward. The space inside the chest gets bigger and air rushes into the lungs and fills up the extra space. Okay, and when we breathe out, the muscles relax and diaphragm move upward and the rib cage is lowered. The space in the chest gets smaller
and air is forced out of the lungs. ठीक है, तो these are called the breathing movement. ठीक है, जो कि किसकी वजह से होती हैं? डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से. ओके Okay student, here are some diseases of the respiratory system. Number 1, cough and cold. Number 2, influenza or flu, or number 3, asthma. Cough and colds and or flu are caused by the viruses, and this gives you sore throat and runny nose. There is no cure of these diseases, but some medicines can relieve the patients. Okay. Third disease is asthma. Asthma is caused by the different things like animals, like dog and cat. Hairs of dog and cat cause the asthma if it goes into our respiratory system. And other causes are tobacco smoke, cold air, exercises. Even laughing can cause asthma in the body. Okay. The treatment of the asthma. One treatment of the asthma is to use an inhaler, and different medicines are also available for the treatment of asthma. Okay. In the asthma, the bronchus are very narrow, and it is narrow the passage of the air and cause the problem in the breathing. Okay. The last topic of this chapter is smoking tobacco. You know, smoking tobacco is very harmful to the body. There is more than 300 different chemicals in the tobacco smoke. We only consider here 3. Number 1, nicotine. Number 2, carbon monoxide, and number 3, tar. These are the most harmful substances in the smoke tobacco. और ये हमें क्या करता है? मुख्तलिफ डिजीज़ जो है, लंग्स डिजीज़ जो है, वो हमारी बॉडी में कॉज करता है. नंबर 1, निकोटीन. निकोटीन इज़ वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी. और आप ये समझिएगा कि ये एक तरह की एक ड्रग है, और ये जो है हमें क्या करती है? एडिक्टिव बना देती है. किसका? स्मोकिंग का. और जो टोबैको स्मोकर होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या करते हैं, वो इसको जो है, इस आदत को, इस हैबिट को जो है वो छोड़ दें, या उनको जो है स्मोकिंग छोड़ना जो है इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. और ये हमारी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता बहुत वीक करती जो है वो चली जाती है. नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत पॉइजनस गैस है, और ये क्या करती है कि रेड ब्लड सेल्स में जो हेमोग्लोबिन होती है उसके साथ जॉइन हो जाती है, और हेमोग्लोबिन जो होती है वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करे. बोल के ये क्या होती है कि ऑक्सीजन की जगह हेमोग्लोबिन के साथ खुद अटैच हो जाती है, और उसे जो है ऑक्सीजन को कैरी करने में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती है. नेक्स्ट वन इज टार. टार इज द ब्राउन कलरिश सब्सटेंस विच इज कलेक्ट ऑन द लंग्स, एंड इट इरिटेट्स द एयर ट्यूब्स एंड एयर सैक. ओके, तो टार की वजह से भी बहुत सारी डिजीजेस कॉज होती है, लाइक लंग कैंसर जो है वो टार की वजह से जो है कॉज होता है. इसके अलावा एयर ट्यूब्स में जो नैरो हो जाती हैं वो भी टार की वजह से जो है वो होती है. तो दिस कॉज जो है, निकोटीन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को भी कॉज करती है. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को डिस्टर्ब करती है, और टार जो है वो डेंजरस डिजीजेस लाइक लंग कैंसर को जो है वो कॉज करता है. तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, स्मोकिंग टोबैको आर वेरी हार्मफुल टू द बॉडी. ओके ओके स्टूडेंट, दिस इज योर बुक. Chapter number 2 start from the page number 9. This is chapter number 2, respiration and energy from the food. Okay. This is your assignment number 4. Continue the work of chapter number 2, respiration and energy from the food. Long question answer हम इसमें continue कर रहे हैं. Question number 2 से आपका स्टार्ट हो रहा है.
इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द राइट सम सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द बर्निंग एंड ब्रीथिंग। तो यहाँ पे आपको 2 जो है इसकी सिमिलैरिटीज़ गिवन है और 2 जो है डिफरेंसेस आपको जो है यहाँ पर गिवन है। नंबर 1, रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल। बर्निंग में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है फ्यूल से, और ब्रीथिंग में रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल और फूड। फ्यूल ही है, फूड जो है वो क्या है, हमारी बॉडी का फ्यूल है। तो दिस इज द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ द बर्निंग एंड ब्रीथिंग। नंबर 2 है यूजेज ऑक्सीजन एंड रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग में भी यही होता है और ब्रीथिंग में भी यही होता है। फिर डिफरेंसेस पे आ जाइए। रिलीजेज एनर्जी रैपिडली एंड इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और ब्रीथिंग में क्या होता है, रिलीजेज एनर्जी स्लोली एंड कैन बी कंट्रोल्ड। दोनों में एनर्जी तो रिलीज होती है लेकिन बर्निंग में बहुत रैपिडली होती है और उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और ब्रीथिंग में क्या होती है, स्लोली जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये कंट्रोल में होती है। फिर लास्ट है इन्वॉल्व हीट एंड लाइट फ्लेम्स, हीट प्रोड्यूस बट नो लाइट। बर्निंग में क्या होता है, हीट एंड लाइट, फ्लेम की शक्ल में आपने फ्लेम देखे होंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी फ्यूल को जब आप बर्न करते हैं तो उसमें लाइट भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी। जबकि ब्रीथिंग में जो है हीट तो प्रोड्यूस होती है बट नॉट लाइट। ओके, दीज आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बर्निंग एंड ब्रीथिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाई डू यू ब्रीथ फास्टर एंड योर हार्ट रेट इंक्रीजेज व्हेन यू रन। अच्छा, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो है जब आप एक्सरसाइज करते हैं या जो है आप रनिंग करते हैं तो आपकी जो है हार्ट बीट जो है वो क्यों बढ़ जाती है और आपकी जो है आप ब्रीथ फास्टर क्यों करते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि आपको जो है कोई भी वर्क और प्ले करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी जो है वो हमें किससे हासिल होती है, बर्निंग ऑफ फूड से जो है वो हमें मिलती है। तो जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या रन कर रहे होते हैं तो आपके मसल्स को जो है फ़ौरन और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है, जिसकी वजह से जो है आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग का जो प्रोसेस होता है यानी इनहेलेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट रेट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जल्दी जल्दी जो है उन्हें वर्क करना पड़ रहा है, मसल्स को फूड सप्लाई करनी होती है, जिसकी वजह से उनमें जो है हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मोकिंग कैन डैमेज योर हेल्थ। वाई स्मोकिंग कैन डैमेज योर हेल्थ। तो इसके बारे में मैं अभी बहुत डिटेल से आपको बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है फिल इन दी ब्लैंक्स। अच्छा, ये फिल इन दी ब्लैंक्स की जो एक्सरसाइज है वो मैंने आपकी जो है चैप्टर नंबर 1 से बनाई है, तो आप इसको जो है अच्छी तरीक़े से कॉपी कर लीजिएगा। ओके, तो ये जो है आपकी 2 जो है वो आपकी फर्स्ट पेज पे है, और फिर उसकी बैक पे आप देखिएगा तो सेकंड पेज पे जो है आपको 5 जो है टोटल आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स है जो कि फर्स्ट चैप्टर से ली गई है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी राइट ट्रू एंड फॉल्स है जो कि आपके सेकंड चैप्टर यानी अभी जो हमने जिसको एक्सप्लेन किया उससे लिए गए हैं। दीज आर ऑल इन 5 इन नंबर एंड मैच द एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी मैच द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स लिए गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के और उनके फंक्शन से आपको इसको मैच करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1 वर्ड आंसर की। ओके स्टूडेंट, इसमें आपको ऐसे करना है कि जब आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखे विच गैस एंटर द ब्लड फ्रॉम द एल्वोलाई, तो इसका आंसर ऑक्सीजन। तो आप ऑक्सीजन कहाँ लिखेंगे, उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। ठीक है, राइट एवरी आंसर ऑन द नेक्स्ट लाइन। राइट, तो ये क्वेश्चन लिखकर फिर आंसर आप उसका नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है इसी तरीके से, उसका आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे आप लिखिएगा तो नेक्स्ट लाइन में। तो इस तरीके से ये 5 आपके 1 वर्ड आंसर भी जो है वो आपको गिवन है which is taken from the chapter number 2 respiration and energy from the food। ओके, तो ये आपका असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट है। तो इसको आप अच्छी तरीक़े से जो है हेडिंग डालकर और उसमें जो है कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, गौर से इसको पढ़िएगा
इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा तो इंशाल्लाह आपकी सब समझ में आ जाएगा। इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा और चेक करवा लीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।